ओके सो हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वप्निल टाटिया एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सम क्वेश्चंस, ये एनटीए के डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चंस मिले थे मुझे, सो लेट्स ट्राई देम आउट। उनको सॉल्व करते हैं आज। विल ट्राई 10 क्वेश्चंस टुडे एंड फिर 10 क्वेश्चन अगले वीडियो में, फिर और 10, तो वैसे करते जाएंगे एंड विल कीप सॉल्विंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ओके, तो चलो नाउ let's take a look at first question. See, what does first question say? If y is 4x minus 5 and this is tangent to this curve at 2 comma 3, then what is p and q? So that's the question. तो सिंपल सा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। क्या करेंगे हम? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये कर्व का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो ऑन डिफ्रेंशिएशन व्हाट डू वी गेट? 2y dy by dx that is equal to 3px square plus 0. डिफ्रेंशिएशन ऑफ q, q is a constant. ओके, तो अब ये 2,3 पर ये टेंजेंट बना रहा है, राइट? सो जस्ट पुट 2,3 इन दिस इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू वाई इज़ 3 dy by dx, क्या इसका वैल्यू पता है? हाँ, check this. The slope of this tangent will be dy by dx, which is 4. This is equal to 3 into p into x square. X square is 2 square, which is 4. Now 4 and 4 cancel out, 3 and 3 cancel out. We are left with p equal to 2. So if p is equal to 2, b and c are incorrect readily. तो अब p equal to 2 को क्या करेंगे? Let's put it in that equation. Y square is equal to 2x cube plus q. And now just put this 2 comma 3 in this, because 2 comma 3 has to satisfy that curve, है ना? So just put it here. So we get 9 is equal to 16 plus q and q is equal to minus 7. So that's how simple this question was, or the correct answer is option D. ठीक है? So this is our first question. Now let's keep this solution aside. Let's move to the next question, which is question 2. Now question 2 is कि if at x equal to -1 and x equal to 2, f of x reaches its extrema value, तो what will be alpha and beta? Again, अगर extrema है तो क्या होगा? At extrema we get dy by dx equal to 0, क्योंकि slope 0 होगा for tangent at that point. तो अब क्या करेंगे? f of x को डिफ्रेंशिएट करो, तो अल्फ़ा डिवाइडेड बाई मॉड x इनटू डेरिवेटिव ऑफ मॉड x क्या होगा? मॉड x डिवाइडेड बाई x. नाउ दैट प्लस 2 बीटा x प्लस 1. ओके, नाउ दिस इज सपोज टू बी 0, है ना? ओके, नाउ x को हम कैसे भी 0 डाल नहीं रहे, तो वी कैन कैंसिल दिस आउट. 0 बाई 0 फॉर्म नहीं आएगा. तो अल्फ़ा बाई एक्स प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 1, दिस हैज़ टू बी 0. नाउ एट x equal to -1 and x equal to 2 we get extrema. Perfect. तो what do? We just put in -1 and 2. So x is equal to -1 डाल लेते हैं. So what do we get? Minus alpha, and here we get minus 2 beta plus 1 is equal to 0. Then we put x equal to 2, and from that we get alpha by 2 plus 4 beta plus 1 is equal to 0. So what do? Second equation को 2 से multiply कर लेते हैं ना. That will be a good choice, right? So what do we end up getting? These pieces are gone. We get alpha plus 8 beta plus 2 is equal to 0. Just add these two equations. The equation 1 and the equation 2 are supposed to be added. So what do we get? 6 beta plus 3 is equal to 0, which implies beta is minus half. Beta minus half हो गया. Now if beta is minus half, just put it in the first equation. So what do we get? Minus alpha plus 1 plus 1 is 0. So alpha is 2.
alpha is 2 and beta is minus half, which is the option A. Option A is the right answer. Perfect. आ गया है समझ में? चलो, दिस इज सी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जेई में, है ना. सो यू आर नॉट सपोज टू मिस आउट ऑन सच क्वेश्चंस. सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे इजी हो या हार्ड हो, लेकिन सिलेक्शन तुम्हें पता होना चाहिए कि सेलेक्ट करते वक्त अगर इजी क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो यू विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्फिडेंस एट द बिगिनिंग इटसेल्फ, देन यू विल रॉक द पेपर बेसिकली, है ना. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 3. हाँ, क्वेश्चन 3 थोड़ा लंबा होने वाला है, लेट्स टेक इट एट द एंड. ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स गेट डन विथ क्वेश्चन 4. ओके, क्वेश्चन 4. व्हाट डज क्वेश्चन 4 हैव टू से? 3x की पावर 4, 4x क्यूब, ये कुछ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के बारे में सवाल है. ठीक है, तो व्हाट डू वी डू? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं हम? एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करेंगे. इफ इट इज़ ग्रेटर देन 0 इट्स इंक्रीजिंग, है ना. इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इट्स अ पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, है ना. ऑल दिस इज फाइन. और अगर इट इज़ लेसर देन 0, in that case what do we get? It's decreasing function. So बस we just have to check for its increasing decreasing nature. तो अब f dash of x क्या होगा? For f of x equal to 3, see f of x is given as 3x power 4, 4x cube minus 12x square plus 12. So f dash of x naturally comes out as 12x cube plus 12x square minus 24. Now we have to factorize this somehow. So can we write it as 12 into, did I miss out x? Yeah. So 12x into x square plus 1, no, plus x minus 2. Can this be written as 12x into x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1? ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं ना. चेक इट आउट, सही है कि नहीं है. अब वंस यू गेट दिस बेबी कर्व मेथड तो तुम्हें पता ही है. जस्ट ड्रॉ अ लाइन, टेक ऑल द पॉइंट्स जहाँ पर ये 0 बन सकता है. 1 पॉइंट इज़ 0, 1 इज़ -2, द अदर इज़ +1. स्टार्ट पुटिंग प्लस माइनस साइंस डिपेंडिंग ऑन द पावर ऑफ द फंक्शन, मतलब x की पावर के हिसाब से. तो we get this, तो we get कि that value increases, so increasing nature वाला प्लस होगा, है ना. प्लस वाला पार्ट है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग होगा फ्रॉम -2 to 0 यूनियन 1 to infinity. नाउ डिक्रीजिंग का होगा, जो भी बचा कुछ है सारा डिक्रीजिंग ही है, मतलब -∞ से -2 यूनियन 0 to 1. Now we got where it is increasing, where it is decreasing, right? है ना. Now give it a check. यहाँ पर दिया हुआ है increasing in -∞ to -2 यूनियन 0 to 1. ऐसा है क्या? नहीं है. This is actually the decreasing वाला इंटरवल. सेकेंड वाला क्या दिया है? इंक्रीजिंग इन -2 to 0, 1 to infinity. ये हमें एग्जैक्टली सेम आया है, विच मीन्स कि बी सही है. फिर भी लेट्स गिव इट अ चेक टू अदर ऑप्शन एज वेल. ठीक है, डिक्रीजिंग -2 to 0, 0 to 1 वैसा तो है नहीं. -2 to 0 इंक्रीजिंग है, -∞ to -2 में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन 1 to infinity में इंक्रीज हो रहा है. दैट्स वाई ऑल दीज ACD आर इनकरेक्ट. परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव ऑन. सी, ज़्यादा समय लगता नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को करने में, राइट. सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल्सो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस. सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इज़ अगेन अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, बट देन आई थिंक कि समवॉट उसको हैंडल किया जा सकता है. प्रैक्टिस तो करना ज़रूरी है ना. एंड व्हाट विल डू इज़
कि आई पुट दीज क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है, ताकि यू कैन ट्राई आउट द रेस्ट ऑफ द 30 क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं, वो सारे ट्राई कर लेना बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट वीडियो. फिफ्थ वन इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, बहुत सिंपल है एंड येट इट कैन कम इन जी. ठीक है, तो दिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो हमें पता है, ए क्यूब होता है वेर ए इज़ द साइड लेंथ. और सी व्हाट इज़ गिवन, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 18 centimeter cube per second, and when edge of the cube is 12 centimeters, the rate in centimeter square per second at which surface area of cube increases is, है ना. तो surface area of cube क्या होता है, 6a square, a square एक square का और into 6 हर एक साइड का, तो 6a square हो गया surface area. now दिया क्या है हमें, dv by dt दिया है, which will be 3a square dA by dt, है ना. so dV by dt is positive 18 and that is equal to 3 times, उस टाइम पर a क्या था 12 स्क्वायर, और dA by dt हमें यहाँ से निकालना है. ठीक है, तो dA by dt comes out to be what, 6 divided by 12 square. let's keep it like this itself. okay, है ना, let's keep it like this and then let's go to this part. surface area 6a square है, so what will, हमें find क्या करना है, रेट ना, तो dA by dt find करेंगे हम, which will be 12a dA by dt, which is nothing but 12 into 12. dA by dt is what, 6 divided by 12 square. is that right, है ना. ओके, वन सेक, हो गया ना ये इतना. अब 12 स्क्वायर कैंसिल हो गया, dA बाई dt कम्स आउट टू बी व्हाट, 6. जस्ट गिव इट अ चेक, सारे सही तो है ना. 3 इंटू ए स्क्वायर. ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन एरर्स की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इट्स बेटर टू गिव इट अ चेक वंस. ठीक है, तो 3a स्क्वायर dA बाई dt, परफेक्ट. ये 18 दिया हुआ है, ये भी ठीक है. तो 3 6 by 12 square, so dA by dt is 6 by 12 square, and here 12a dA by dt correct है. 12 into 12 into dA by dt 6 by 12 square. okay, चलो ठीक है. so they asked for this increases is, that is 6 centimeter square per second. that is our answer, है ना. so it's not really hard, but just अगर मुश्किल नहीं है होता है क्वेश्चन, तो जेई में यूजुअली वो ट्रिकी होता है. यूजुअली इफ़ इट इज़ ईजी इट्स मोर लाइकली टू बी ट्रिकी. आई डोंट नो, आजकल तो ऐसा ही हो रहा है. ठीक है, सो इट्स बेटर टू बी केयरफुल दैन टू बी सॉरी लेटर ऑन, है ना. सो ये भी सल्यूशन हो गया. नाउ लेट्स मूव to the next question. Next question is what, question number 6. question number 6 is कि f of x कुछ दिया हुआ है, then the maximum value of f of x is. इसको तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, डेरिवेटिव की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें. क्यों, बिकॉज सी x माइनस 3 की पावर 8/9 है. ठीक है, अब ये क्या है, दिस काइंड ऑफ फंक्शन विल बी इवन फंक्शन, है ना. ये इवन है, मतलब कि पावर कुछ इवन है. ठीक है, इवन फंक्शन नहीं बोल रहा मैं. ओके, सो इसकी पावर कुछ इवन है, तो इसका मतलब एनीथिंग दैट यू पुट, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसके अंदर जो भी बनता है x माइनस 3 अगर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर दिस फंक्शन, है ना. अब अगर मैं माइनस डाल दूँ तो हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी. if I always get a negative value here, है ना, if I always get a negative value here, then in that case ये हमेशा नेगेटिव होगा. तो a में से you are basically
subtracting something if you keep anything यहाँ पे, unless it is ज़ीरो. अगर ये ज़ीरो बनता है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर ज़ीरो नहीं बनता तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है बेसिकली, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू चेक, है ना. और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स पूछा है, तो यहाँ पर तो ये ज़ीरो बन सकता है. एट एक्स इक्वल टू 3 वी एंड अप गेटिंग दिस एज एक्स माइनस 3, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. तो ए विल बी आर मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, वैसे तो सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है, बट ग्राफिकली समझे क्या इसको, राइट. ठीक है, चलो लेट्स टेक इट अप विद ग्राफ्स. नाउ x माइनस 3 की पावर 8/9 चाहिए हमें, है ना. तो लेट्स टेक अप सम पॉइंट्स. एक, दो, तीन, चार, एक, दो. वैसे तो ये नेगेटिव का भी बनेगा ही नहीं. ठीक है, ये x है, ये y है. नाउ सी एट 3 तो हमें पता है कि इट इज़ गोइंग टू मेक अ ज़ीरो. लेट्स टेक अनदर कलर ताकि थोड़ा बेटर हो. हाँ, यहाँ पर ज़ीरो होगा. नाउ x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, -1 की पावर 8/9 क्या होगा, 1 होगा आंसर. सिमिलरली 4 पर भी 1 ही होगा. नाउ 1 पर क्या होगा, 1 पर वी गेट 2 की पावर 8/9 विच इज़ स्लाइटली लेसर देन 2. थोड़ा सा छोटा होगा 2 से, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक 2 की पावर 1 ना, ऑलमोस्ट. सिमिलर गोज विथ 5. तो टिपिकली द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. तो वी एंड अप गेटिंग द मिनिमम वैल्यू हियर इटसेल्फ एट x इक्वल टू 3. दैट्स द रीज़न कि अगर ये मिनिमम होगा एंड यू आर सब्ट्रैक्टिंग अ मिनिमम वैल्यू फ्रॉम समथिंग, तो दैट समथिंग विल बी मैक्सिमम ना. तो दैट इज़ वाई द आंसर इज गोइंग टू बी ए. ओके, होपफुली इट्स क्लियर, राइट. चलो, so that is how it is with this question. Now let's shrink this up and put it beside its question, है ना. Yes, चलो. Next we have the 7th question. What does 7th question have to say? f of x कुछ दिया हुआ है, इट इंक्रीजेस फॉर ऑल x. वाह 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 वाह, परफेक्ट. अब क्या करेंगे इसके लिए, सी इंक्रीजेस बोला है, फॉर ऑल x बोला है, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. तो एफ डैश ऑफ एक्स ही फाइंड करना है फिर से, है ना. हियर कॉस मॉड x दिया हुआ है, सो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन मॉड x, और मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है, मॉड x डिवाइडेड बाई x. ओके, तो अब क्या दिया है उसके बाद -2a आ जाएगा ना डेरिवेटिव. सो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया माइनस मॉड एक्स बाई एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड एक्स -2a. नाउ दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट्स इंक्रीजिंग एवरीवेयर. ठीक है, इंक्रीजिंग एवरीवेयर. इक्वल टू 0 भी हो सकता है वैसे. अगर इक्वल टू 0 होगा तो आई वुडंट से कि इट्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, but then it's still increasing. It's an increasing function, non-decreasing function होगा वो. Okay. तो now here what do we have to check? We'll have to take cases of course. क्यों? Because यहाँ पर mod x आ रहा है ना, so लेना पड़ेगा. x greater than 0 के लिए क्या हो जाएगा? We'll end up getting the function as minus sin mod x greater than equal to 2a. है ना. What did we do? मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स बाई एक्स पॉजिटिव होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, तो माइनस साइन वैसा कि वैसा रह गया. बट एक्स लेस देन 0 के लिए क्या होगा, साइन मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ जाएगा. नाउ द थिंग इज कि ये ऐसा है, ए इज ऑलवेज, और एक काम करते हैं, 1 सेकेंड,
हाँ ठीक है, ये भी ठीक है. सो ए इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस साइन मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड ए इज़ लेसर दैन और इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स बाई 2. सो इन दोनों को भी हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ऐसा ए, बिकॉज ए इज़ अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल, तो इफ़ इट ऑलवेज हैज़ टू बी लेसर देन दिस फंक्शन, तो व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? इसका मैक्सिमम वैल्यू, मतलब साइन मॉड एक्स यहाँ पर इस केस में साइन मॉड एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, और ये पूरे फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन दिया हुआ है ना, इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ढूंढना पड़ेगा ताकि ए उससे जस्ट थोड़ा सा छोटा हो या उसके इक्वल ऑलमोस्ट. ठीक है, सो इन दैट केस इट विल ऑलवेज बी स्मॉलेस्ट. तो यहाँ पर क्या होगा? ए विल बी लेसर देन और इक्वल टू माइनस हाफ, बिकॉज द बेस्ट ए कैन डू इज दिस. सेम गोज हियर. साइन मॉड एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1. तो यहाँ पर भी माइनस हाफ. सो वी एंड अप गेटिंग ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस हाफ. इसका मतलब कि देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है. ए कैन बी माइनस इन्फिनिटी एज वेल, बट देन माइनस हाफ विल ऑल्सो सेटिस्फाई द केस कि इट विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग. इसीलिए व्हाट डू वी डू? इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए वी जस्ट पुट ए इज इक्वल टू माइनस हाफ. माइनस इन्फिनिटी डालूंगा तो ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी होगा, विच वोंट बी द मैक्सिमम वैल्यू. माइनस हाफ डाल दूंगा तो आई विल एंड अप गेटिंग -1 + 1 विच इज़ 0, एंड दैट शुड बी आवर आंसर. राइट, आ रहा है ना समझ में? व्हाट डिड वी जस्ट डू? बस मिनिमम वैल्यू. सिंस ए हैड टू बी मैक्सिमम, ओके, सिंस ए हैड टू बी मैक्सिमम, वी जस्ट चोज, आई मीन 2a + 1 को मैक्सिमम होना था तो a ऑल्सो हैड टू बी मैक्सिमम टिपिकली. तो अगर a को मैक्सिमम होना था तो वी जस्ट फाउंड आउट कि a के पास क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं. वंस वी फाउंड दैट आउट वी कैन जस्ट जज फ्रॉम दैट कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a क्या होगा. करस्पॉन्डिंग वैल्यू को डाल लो उसमें, मैक्सिमम वैल्यू 2a + 1 का आ जाएगा वही से. ओके, नाउ लेट्स गिव अ चेक टू क्वेश्चन 8. इतना समझ में आ गया ना? क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? द फंक्शन x की पावर 5 - 5x की पावर 4 + 5x क्यूब -1 इज. ओके, मैक्सिमम मिनिमा के ऊपर है ये सवाल. तो व्हाट डू वी डू? फिर से डिफ्रेंशिएट ही करना है वैसे तो. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसा क्या आ जाएगा? 20x³ + 15x², ये होगा डेरिवेटिव. नाउ दिस हैज़ टू बी 0 ना, मैक्सिमा या मिनिमा किसी भी चीज़ के लिए, आई मीन मैक्सिमा या मिनिमा या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, तीनों के लिए डेरिवेटिव 0 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव. तो व्हाट कैन वी डू हियर? x² को बाहर ले ले. अब 5x² -5 को भी बाहर ले सकते हैं, है ना. 5 को अगर हम बाहर ले लें तो इट विल बी बेटर. x², 5 चला गया यहाँ से, 4x, और यहाँ पर 3 बचा. दिस इज़ 0. तो व्हाट डू वी गेट? x इज़ 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा? x इज़ 3 और x इज़ 1. तो वी एंड अप गेटिंग दीज वैल्यूज. तो वी हैव गॉट x इज़ 0, 1, 3, ये 3 में से कुछ होगा. अब हाउ डू वी फर्दर चेक? आगे कैसे चेक करेंगे कि मिनिमा होगा मैक्सिमा होगा? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सिंपल. यस, तो 20x³ - 60x² + 30x, ये आ जाएगा. नाउ 0 डाल दूंगा तो विल एंड अप गेटिंग 0, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x = 0. ठीक है, x = 1 डाल दूंगा तो आई विल गेट 20 - 60 + 30 विच इज़ 50 - 60. 50 - 60 इज़ -10. तो x इज़ इक्वल टू 1 पे इट इज़ कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. इसका मतलब इट्स अ मैक्सिमा. f" of x comes out to be negative, right? अब x = 3 पे, x = 3 पे क्या आ जाएगा? we'll end up getting
20 टाइम्स एक्स क्यूब यानी कि 27 माइनस 60 इंटू 9 प्लस 90। ओ तो इनको कैसे करेंगे? 20 कॉमन ले लेते हैं। 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 कैन बी टेकन कॉमन, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 20 इंटू 9 कॉमन ले लिया तो फिर से 3 आ जाएगा ना। चेक इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो। हाँ, विल एंड अप गेटिंग द सेम थिंग, सो विल एंड अप गेटिंग प्लस 90 ईयर। तो प्लस है तो दिस इज सपोज टू बी अ मिनिमा। तो x इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा और x इक्वल टू 3 पे मिनिमा। तो सी फर्स्ट वाला तो गलत ही है, मैक्सिमा नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे मिनिमा आ रहा है। मिनिमम एट x इक्वल टू 1 ये गलत है। मैक्सिमम एट x इक्वल टू 0 ये भी गलत है। नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट x इक्वल टू 0। परफेक्ट, सी इज द राइट आंसर। इट्स नीदर अ मैक्सिमा नॉर अ मिनिमा, इट्स अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो सी, छोटे छोटे कंसेप्ट होते हैं बहुत, बस उन्हीं को रिपीट करके पूछते हैं। वैसे जेई में वही कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं से आएंगे सवाल, लेकिन थोड़ा टेढ़ा करके देंगे सवालों को। सो नाउ एज वी आर डन विथ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स डाइव इनटू क्वेश्चन 9। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स। ठीक है, सो वी जस्ट नीड टू नो कि वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या फिर नॉन डिफरेंशिएबल। तो बेसिकली यू अगेन हैव टू फाइंड आउट व्हाट एफ डैश ऑफ एक्स इज, एंड इसका एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर 1 प्लस मॉड एक्स इंटू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, माइनस मॉड एक्स बाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सो वी गेट 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। ओके, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बिकॉज दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शुड बी द राइट चॉइस। परफेक्ट। अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट लेट्स अगेन जस्ट मेक दिस स्मॉल एंड पुट इट बिसाइड इट्स क्वेश्चन। बहुत छोटा था ना इसका सोल्यूशन वैसे। चलो लेट्स सिलेक्ट एवरीथिंग। परफेक्ट। ओह यस, हाँ, तो अब ये 9th हो गया। Now we can move to question number 10. ये question 10, abscissa of the point where tangent is parallel to x-axis. Parallel to x-axis का मतलब क्या है? स्लोप 0 होगा, है ना। अब abscissa पूछा है, abscissa मतलब क्या? x की वैल्यूज, तो अब डेरिवेटिव निकाल लो सिंपली। अगेन dy by dx has to be 0 here, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर दिख रहा है ना फंक्शन, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6, यहाँ पर माइनस 9x है तो उसका -9 प्लस 5 उसका 0 होगा। दिस इज सपोज टू बी 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हैज़ टू बी 0, यानी कि x माइनस 3 इंटू x प्लस 1, दिस इज 0, x कैन बी 3 और x इज इक्वल टू -1, सो वी गेट x इज 3 or x is -1, which is option D. That's how simple it is. You have to understand the question, है ना। समझने लग जाओगे, सॉल्व करने लग जाओगे। Perfect. Now let's move on to the third question which we had left initially. ठीक है, and that will be the last question for the day. और उसको समझने में थोड़ा सा अटेंशन दे देना, ठीक है। सी, अब बोला क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, ये दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस चाहिए। तो व्हाट कैन वी डू, है ना, दैट विल बी द क्वेश्चन। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स हम कैसे फाइंड करते हैं? अब द थिंग इज, अब
तुम दो पैरेलल लाइंस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, you don't take any other distance because it will simply be greater, है ना. So you'll always consider the perpendicular distance. So because why do you do that? Because perpendicular distance will be the minimum distance and that will be the exact distance that you can measure. Minimum होगा वो सबसे. So that is what we'll do here. तो दोनों कर्व्स में कोई कॉमन नॉर्मल आएगा, ठीक है. फॉर एनी सच क्वेश्चन व्हाट विल यू डू? एक कॉमन नॉर्मल आएगा, यू विल फाइंड दैट कॉमन नॉर्मल, ठीक है. और वो कॉमन नॉर्मल इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा किसी किसी पॉइंट पर. तो वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस तुम निकालोगे एंड दैट विल कम आउट टू बी द मिनिमम डिस्टेंस. तो अब इसमें कॉमन नॉर्मल कैसे निकालेंगे? देखो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर 2x इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. ये दो चीज़ें आ गई. अब नॉर्मल का स्लोप क्या होता है? माइनस ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, है ना. दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल. तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा? इस केस में माइनस 2y हो जाएगा और इस केस में माइनस 1/2x हो जाएगा, ठीक है. सो इसको हम मान लेते हैं m1, इसको हम मान लेते हैं m2. बट ये किसी और कर्व पर है तो ये हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट x0 y0 मान लो, और इस केस में x1 y1 पॉइंट. तो दोनों पॉइंट्स अलग है, दैट शुड बी वेरी क्लियर. एल्स अगर सेम पॉइंट है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना, बट एक्चुअल में थोड़ी है वो वैसा. तो व्हाट डू वी डू? -2 y0 होगा m1 और m2 हो जाएगा -1/2 x1, ठीक है. सो वंस वी गेट दिस, अब बिकॉज इट्स अ कॉमन नॉर्मल तो स्लोप्स तो सेम होंगे ही, है ना. सो व्हाट डू वी एंड अप गेटिंग? y0 इज इक्वल टू 1/4 x1. ये दोनों को इक्वेट किया बस, m1 इज इक्वल टू m2. दिस इज one important equation that we'll be requiring here, ठीक है. now this is the first piece of the question. यहाँ तक ठीक है. now हमें दो पॉइंट्स पता है. can we write equation of line? straight line का इक्वेशन क्या होता है पता है ना हमें. so दो पॉइंट्स हमें पता है, नॉर्मल का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम अभी. तो y1 माइनस y0 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x0, ये हो जाएगा हमारा स्लोप. स्लोप क्या है? इधर यू राइट इट एज -1/2 x1 और यू राइट इट एज -2 y0. आई प्रेफर राइटिंग दिस एक्चुअली, ठीक है. अब क्या करेंगे? we'll have to sit and find out everything in terms of x1, ठीक है. now we have to do that. अब y1 और x1 के बीच का रिश्ता क्या है? y1 कैन बी रिटन एज x1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस 1. सो लेट्स पुट इट हियर, x1 स्क्वायर प्लस 1. नाउ y0 और x1 के बीच का रिश्ता -1/4 x1. देन इन द डिनोमिनेटर वी हैव x1 माइनस x0. अब x0 और x1 के बीच का रिश्ता निकालना है तो वी कैन डू इट फ्रॉम हियर. दिस इज y स्क्वायर प्लस 1 और y क्या था x0 के टर्म्स में? 1/4 x0, सॉरी 1/4 x1, तो 1/16 x1 स्क्वायर प्लस 1. ये हो जाएगा x0, तो 1/16 x1 स्क्वायर प्लस 1. एक्चुअली ये -1 होगा बिकॉज देयर वाज अ माइनस साइन आउटसाइड. नाउ दिस इज इक्वल टू -1/2 x1. नाउ वी हैव टू सिट एंड सॉल्व दिस. तो 2x1 को वहाँ पर भेज दो तो व्हाट डू वी गेट? -x1/2 -1/2 x1 8 x1 स्क्वायर.
सॉरी 8x1 स्क्वायर, ये रहा। तो माइनस होगा या प्लस होगा? प्लस होगा। और एक क्या बच गया? -1/2x1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो विल गेट 1/16x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस x1। ओके, अब इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो क्या मिल जाएगा हमें? लेट्स सेंड दिस ऑन द अदर साइड। सो वी गेट 1/16x1 स्क्वायर, इसको इधर भेज लेते हैं, प्लस x1/2, इसको भी इधर भेज लेते हैं। सो वी एंड अप गेटिंग दिस इक्वेशन। लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई 16x1 स्क्वायर। यहाँ से x1 आ जाएगा। वंस यू गेट x1 यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। ठीक है, मल्टीप्लाई दिस बाई 16x1 स्क्वायर, सो यू गेट 1 प्लस 8x1 क्यूब माइनस, ये क्या होगा? x के फॉर्म में होगा ये, 8x1 माइनस 16x1 स्क्वायर, दिस इज 0। और 8x1 क्यूब माइनस 16x1 स्क्वायर माइनस 8x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स निकालने हैं हमें। हाउ डू वी डू दैट? दिस इज अ क्वेश्चन। इसके रूट्स निकालने हैं। सो व्हाट डू वी डू? We have to start substituting, there is no other choice. ठीक है, so if we put x1 equal to 1, does it work? 8 minus 16 minus 8, no it does not work. Minus 1 if I put it, minus 8 plus 8 0 हो गया, no it does not work. If I put x1 is equal to 2, if I put 2, what do I get? 8 into 8 minus 16 into 4 minus 8 into 2 plus 1 is equal to 0. No, this does not work. But if you carefully notice कि तुम कोई भी integer डाल लो, it is not going to work, है ना? Because this will always be even and you will always get clumped up with this odd. तो इसीलिए I think we'll have to put in some fraction. तो I think this should work because मुझे लग रहा है कि this will work. ठीक है, तो 8/8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेट्स गिव इट अ चेक। ये 1 है, ये 4 है, ये भी 4 है। आओ इज इट प्लस हाफ और माइनस हाफ? माइनस हाफ वर्क्स क्या? दिस बिकम्स माइनस, देन दिस इज प्लस, परफेक्ट। सो x1 इक्वल टू माइनस हाफ इज वर्किंग। See, अब यहाँ पर we have taken some kind of guesswork is what I would say, because you can't solve this completely. So x1 is equal to minus half is what you end up getting. Now since you've got this, you end up getting y1 as x1 square plus 1 na? So that will be 1/4 plus 1, which is 5/4. Then x naught will be, okay, first let's find out what y naught will be. What was y naught supposed to be? What was y naught supposed to be? Y naught was supposed to be 1/4x1, so that will be minus half, right? It will be minus half. And then x naught was what? Y naught square plus 1, so that is 5/4. Now since we know x1 y1 and x naught y naught, we can find out the distance by using the distance formula, which is y1 minus y naught ka square plus x1 minus x naught ka square. So this turns out to be under root, it will be 5/4 plus half for both of them. 5/4 plus half का square into 2, and this is, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7
square divided by this is 4 का square into root 2 इस पे root, so it is 7 by 4 root 2 or 7 divided by 2 root 2. Now which one satisfies this? Third question, 7 root 2 by 4. Here we have it. It's option C. Perfect. So this is how it is. I know. So this is how it is. Question 3. As I said, this will require little luck as well. Because if you don't get that minus half plus half wala thing, you won't be able to solve it. Okay. So that is where you might get stuck. Other than that, if you know how to find minimum distance, I think you're good to go. Concept तो उतना ही है, ठीक है. So this is our question 3, and question 3 we end it here. Okay, so here we end with this session. The end. Thank you for watching, and stay motivated, keep smiling.